नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हम आपको तेज हरियाणा के जरिए टिकरी बॉर्डर से लगातार किसानों की हर उस कवरेज को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको हरियाणा की उस पहले बॉर्डर से, जहां पर पंजाब सीमावर्ती बॉर्डर से ही हमारी ये यात्रा शुरू हुई है, जो कि किसान आंदोलन यात्रा से आपको हर उस रंग को दिखाएंगे जो इस पूरे किसान आंदोलन के अंदर रंग अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहे हैं। लगातार पिछले 1 महीने से ज़्यादा का वक्त किसानों ने टिकरी बॉर्डर पर बिताया है और लगातार तीनों कृषि कानूनों को वापस करवाने की मांग को लेकर किसानों के जत्थे लगातार घरों को छोड़कर दिल्ली का घेराव कर रहे हैं। और शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद सरकार की ये भूल अब बहुत बड़ी भारी पड़ने वाली है कि शायद किसानों की संख्या अपने आप खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन सब कुछ विपरीत हो रहा है कि दिन प्रतिदिन किसानों की संख्या बढ़ रही है। मैं एक बस के माध्यम से हम सफ़र कर रहे हैं, दिल्ली के लिए हम निकले हैं और इस वक्त बहुत सारे किसान इस बस के अंदर, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे किस तरीके से वो इन तमाम बातों को देखते हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा ਤੁਹਾਡਾ नाम की और ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਪਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਚੱਕਰੂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸਰ? ਪਿੱਛੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲੂੰਗਾ। 2 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 25 ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਜੀ। 25 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 15 ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵੀ ਸਮੇਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੀਤੂਆ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਸੂਲ ਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। 20 ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, 20 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਚੱਲ ਮੋਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਾਲ 20 ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਆ ਹੋਰ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ बहुत योगदान आ। किसी चीज़ की किसानों को कठिनाई मतलब दिक्कत नहीं आने देंगे वो। ठीक है, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं बस नेशनल हाईवे 9 के ऊपर चल रही है, जो कि दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुई है और इसमें तमाम जो किसान हैं। बाबा जी, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੂਗੀ? हाँ जी, पूरी उम्मीद है जी। जिन्ना ये मनना चाहे एकता सब तो बड़ी, एक रल के 11 हो जाते हैं। सब तो बड़ी चीज़ मेन है, उम्मीद यही है जी, एकता होगी तो सब कुछ हो। ठीक है, पीछे परिवार च कौन है, कौन संभालूगा घर खेती बाड़ी? परिवार च जी कोई नहीं गा, वो करना विभाग छोटे है, आप जो करना पैंदा। ठीक है, कबीलदारी छड़ के चले जी उत्थे। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂਗਾ ਖੇਤੀ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ? ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਜਾਈ ਬਜੂਈ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਮੀਦ है जी, ये फैसला होना चाहिए। ठीक है, और हमारे साथ युवा भी हैं। हर कोई दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर जाना चाहता है और एक तरीके से ये तो किसानों के लिए एक तीर्थ स्थान से भी बढ़कर हो गया है। सर, क्या नाम है और आप कहाँ से जा रहे हैं, क्या करते हैं? मेरा नाम है जी लखविंदर सिंह, कंडा मंडी डावाले से जा रहा हूँ जी। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में किसानों की सपोर्ट करने के लिए और कृषि बिलों के विरोध में हम दिल्ली जा रहे हैं जी। अब आप साथ क्या क्या लेकर जा रहे हैं? कितने दिनों की तैयारी करके चल रहे हैं इधर से? सर, साथ हम गर्म कपड़े और रहने का पूरा तमाम सामान लेके जा रहे हैं जी। तकरीबन जब तक बिल वापस नहीं लेते मोदी साहब तब तक हम वहाँ रहेंगे। कोई सर इतनी सर्दी है, कोई घर की फिक्र नहीं है? घर पे भी कोई कामकाज करने होते हैं, खेती बाड़ी और व्यवसाय से जुड़े बहुत सारे काम हैं। हाँ जी, देखिए, लेकिन घर पर जो खेती है वो तो फादर साहब संभाल रहे हैं और हम हमारा जो ऑक्यूपेशन है वो खेती है, इसलिए हम भी जो फार्मर के हक में दिल्ली जा रहे हैं। ये जो तीनों
कानून बनाए हैं ये किसानों के लिए दरअसल डेथ वारंट है। और जो सेंटर सरकार है ये स्टेट सब्जेक्ट है। सरकार सेंटर सरकार का कोई हक नहीं बनता कि वो इस तरह की कोई चेंज करे, अमेंडमेंट करे, कोई कानून बनाए। और हम लड़ेंगे और ज़रूर जीतेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि खेत में पिता अपना फ़र्ज निभाएगा और बेटा बॉर्डर पर बैठकर इन 3 कृषि कानूनों की लड़ाई है वो लड़ेगा। सर, आपका क्या नाम है और क्या लगता है कितनी बड़ी उम्मीदें आपको हैं इस जंग को जीतने को लेकर? आप भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, सारे किसान वहाँ पर जा रहे हैं। मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी। उम्मीदां तो है पर लगता नहीं भी सरकार झुकेगी। उन्होंने अड़ी वाला रुख अपनाया हुआ है पर यह ठीक नहीं है। 3 कानून वापस लेने चाहिए। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ? ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਘਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਅੜੀ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਆਪਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? आप भी युवा हैं, आप दिल्ली के लिए निकले हैं, क्या लगता है आपका नेतृत्व दिल्ली के लिए कितना अहमियत रखता है? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो बिल लागू किया है इसके विरोध में जैसे हम दिल्ली टिकरी बॉर्डर जा रहे हैं, वहाँ जो किसान बैठे हैं उनके समर्थन में जा रहे हैं। जो ये कानून इन्होंने लागू किए हैं इसको इन्होंने वापस लेना चाहिए, क्योंकि इससे एक किसान का ही नहीं, जितना भी गरीब तबका है जो आम सुबह दिहाड़ी पे जाता है और शाम को उसका चूल्हा जलता है, तो उनके ऊपर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे ये यात्रा किसी तीर्थ स्थान के लिए जा रही हो। जैसे आप बहुत बड़े धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, वहाँ पर जो एक ओपिनियन आपका बनता है, वो विचारधारा बनती है, वो एक किसानों के कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम से देखकर नज़र आ रही है। आंखों में एक उम्मीद है। कोई ऐसे परिवार हैं जो अपने पूरे परिवार को छोड़कर, किसान अपनी खेतीबाड़ी को छोड़कर भी इस धरने पर जा रहा है, तो कोई ऐसे कुछ एक फैमिली हैं जिनके पिता ने खेत को संभाला। बेटों की जिम्मेवारी इस टिकरी बॉर्डर पर अलग अलग स्थानों पर दी है कि आप सरकार से लड़ाई लड़िए। निश्चित तौर पर किसानों का आंदोलन अब उस मुकाम पर पहुंचा है जहां पर अब आर पार की लड़ाई है। निश्चित तौर पर किसान सरकार के ऊपर भारी है और कहीं ना कहीं चिंता में सरकार है, आखिर इसका हल किस तरीके से निकाला जाए। आप तेज हरियाणा के साथ लगातार बने रहिए। हम आपको टिकरी बॉर्डर पर पहुंचते वहां का हाल भी बताएंगे, किस तरीके से वहां पर स्थिति है, कितनी संख्या में वहां पर किसान पहुंचे हैं। हमने आपको एक बस के माध्यम से कुछ लोगों के ओपिनियन के माध्यम से बताया कि किस तरीके से लोगों में एक जुनून, एक जज्बा है, एक उस लड़ाई को लड़ने के लिए इतना मादा है कि हर कोई उस जीत के लिए आतुर है।